अस्सलाम वालेकुम। हम 76th सेशन में आ गए हैं और आगे देखते हैं। पेज नंबर 220 है, चैप्टर नंबर 17 इसको देख रहे हैं। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे द इंसिडेंट ऑफ नेकलेस, उसके बारे में हम बात कर रहे थे और फिर क्या हुआ उसके बाद। तो लेज़ली हेजल्टन कहती हैं कि जो हज़रत आयशा की जो कंडीशन थी, फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव इट मस्ट हैव बीन a tougher situation than it seems otherwise. Why? Because though she had been married so young and it had been fourth, fifth year of her marriage, she still had no children. And uh, one of the purposes of marriage, you would know, is in fact, one can say the primary purpose of marriage is children. She did not have them. और हकीकत तो ये है, the woman the Prophet would marry sallallahu alaihi wasallam, after Hazrat Khadija, none of them would have children. और ये जो एब्सेंस है, especially of a male heir, itself led to much talk. शादी का मकसद क्या है? शादी का मकसद इस ज़माने में one of them is to bind people together, to make people into allies. दो warring fractions हैं, आपस में जंगे लड़ रहे हैं, अब उनके बीच में रिश्तेदारी हो गई तो फिर जंगे नहीं होंगी। और उसके बाद when they would have a child, they would have children, that child would be of mixed blood. उन दोनों उसकी निस्बत दोनों से होगी। एंड दिस मिक्स्ड ब्लड वाज न्यू ब्लड, इसमें पुराने डिविजन्स नहीं होंगे, ये दोनों के साथ इक्वली फील होम करेगा। एंड इफ देयर इज नो ऑफस्प्रिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टेइंग इन द मैरिज? तो दैट मस्ट हैव आल्सो बीन काइंड ऑफ बैक ऑफ द माइंड में, वो भी रहा होगा। Certainly, any of his later wives would have given her eye teeth, if not all her teeth, to have children by him. मतलब they could give up on anything. Eye teeth is this upper canine, आँख के नीचे होता है बिल्कुल, और सबसे prominent होता है, सबसे दूर से दिखेगा अगर नहीं होगा तो they could have given all of that to be the mother of his children. ये बहुत बड़ा एक एजाज़ है, and especially if it was a male child, because वो ऑटोमेटिकली आपको काइंड ऑफ नेचुरल आयर होगा, आपका नेचुरल सक्सेसर होगा आपको। तो इस वजह से देयर इज़ नो क्वेश्चन दैट एवरी वन ऑफ देम मस्ट हैव डन वट एवर दे कुड टू बिकम प्रेगनेंट, और हज़रत आयशा वुड ऑल्सो हैव ट्राइड। और इसके बाद हज़रत फातिमा के जो औलादे थी, इमाम हसन और इमाम हुसैन, उनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा उनके साथ ना, he would play with them a lot, and he would laugh, he would take them on his shoulders, और कभी कभार ना वो अपने his noble body he would bend for them and they would kind of jump on his shoulders and उनको सवारी चलाते थे, they would ride on his back. ये भी हज़रत आयशा ने देखा होगा सब कुछ, and she must have felt कि he loves children. She could have thought that there is a void inside him for his own children, and I'm not able to give him one. And then the other Hazrat Aisha, we know she would have seen that there are other people who are very important, and that is children. So मैं ही center of attraction नहीं हूँ. I wish I could give him one. ये जो लेट लाइफ चाइल्डनेस है, चाइल्डलेसनेस है, ये एक कंट्रास्ट है अर्लियर लाइफ का। इससे पहले ही हैड 4 daughters विद हज़रत खदीजा, and then also a son who died in infancy. तो why
Did he not have any children later? It's subject of speculation. ये कहती हैं कि इनकी जो वाइव्स थी, they were widows or divorced and they had children before him. तो infertility on their side would not have been the cause. शायद ये वजह रही होगी कि the prophet did not consummate marriage with them. शायद ये हो सकता है. और since anyone lucky enough to reach the 50s, उसके बाद there is lesser desire to have children etc. लेकिन मुस्लिम थियोलॉजियंस लेस्ली हेजल्टन कहते हैं इसका दूसरा रीज़न देते हैं. वो कहते हैं कि ये जो एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन है ये डिवाइनली डिसाइडेड है. डिवाइनली डिसाइडेड का मतलब ये नहीं है कि मतलब हर एक चीज़ डिवाइनली ही डिसाइड होती है. मज़हब वाले लोग तो यही मानते हैं, हमारा भी यही मानना है, जो कुछ होता है खुदा की मर्ज़ी से ही होता है. यहाँ कहने का मतलब इसमें एक हिकमत है, that being a prophet he could not afford to have more children. He could not have afforded to have a male child. Why? Because that would have created a successor and he was the seal of prophets. Quran was the last and final word. There could not be any prophets after Huzur sallallahu alaihi wasallam. इस वजह से ज़रूरी था कि कोई ना हो जो इनहेरिट करे ये prophetic genes को. Especially they finance the issue, as theologians often do, in this case by saying that a man so graced with revelation was beyond the simple everyday grace of offspring. जो भी रीज़न होगा हज़रत आयशा की चाइल्डनेस का, ये उनको बहुत परेशान किया होगा. कितना भी वो टीज़ करती, कितना भी वो एंटरटेन करती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन वो नहीं कर सकती थी जो हज़रत खदीजा कर पाई थी. वो शायद सबसे फेवरेट रही हो ऑफ द लेट लाइफ वाइव्स, लेकिन कितना भी वो कोशिश करें वो कभी compete नहीं कर सकती थी उस यादगार जो टाइम था हज़रत खदीजा का, वो नहीं कर सकती थी. और इसी वजह से she would one day dare to call that toothless old woman whom God has replaced with a better one. ये हज़रत आयशा ने हज़रत खदीजा के बारे में कहा था एक मौके पे. और अब जब ये जो तोहमत लगी है, जो लोग बातें कर रहे हैं, शी इज़ इन ए मच मोर वल्नरेबल पोजीशन. एक मदरली रेस्पेक्ट जो होता है वो तो नहीं है, क्योंकि मदर अभी है नहीं. तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवोर्स के चांसेस हैं अच्छे खासे. और देन बीइंग डिवोर्स्ड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाय ए प्रॉफिट यू आर डिवोर्स दैट वुड रिमेन विद योर कैरेक्टर फॉर life. That would remain with your clan, with your tribe, that this is a person who the prophet left. So all of this must have इसका अपना अलग वजन रहा होगा. तो कैसे अब रिजॉल्व करें इस मसले को? इसका रेजोल्यूशन किसी हायर अथॉरिटी से ही आएगा, और ऐसा ही हुआ. हज़रत आयशा वाज स्वेयरिंग हर फेथफुलनेस, और ऐसे ही मौके पे एक बार वही नाजिल हुई. हज़रत आयशा से रिवायत है, वो ख़ुद फरमाती हैं कि जब वही का नुज़ूल ख़त्म हुआ, जब वो नाजिल हो गई, वो मामला हो गया, व्हेन ही रिकवर्ड ही सैट अप, और उनके मुबारक चेहरे से वाटर फेल डाउन लाइक रेन. ही बिगैन टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज ब्रो, और उन्होंने फरमाया, गुड न्यूज़ आयशा, अच्छी खबर है हज़रत आयशा. क्या है खबर? गॉड हैज सेंट डाउन वर्ड ऑफ योर इनोसेंस. अल्लाह ताला खुद आपके इनोसेंस की विटनेस है. ही हैज सेंट हिज विटनेस. क्या है मैं विटनेस कि शी इज इनोसेंट. शी हैड बीन स्लैंडर्ड सेज द कुरानिक वॉइस. और क्या कहा अल्लाह ताला ने, क्या फरमाया? ये जो तोहमत लगाने वाले हैं, एक छोटा सा ग्रुप है तुम में से, एक छोटा सा ग्रोह है, इनको सज़ा दो. क्यों? जब तुमने ये ऐसी तोहमत सुनी, तुम ईमान लाने वाले लोग हो, तुमने क्यों नहीं अच्छा हिकमत से काम लिया, अकल लगाई अपनी, और कहा कि ये तो झूठ है,
व्हाई डिड यू नॉट से दैट? ऐसे ही बिना सोचे आपने एक बात को दोहराया, थिंकिंग इट अ लाइट मैटर, जैसे मजाक चल रहा है कोई, जबकि अल्लाह ताला की नज़र में एक बड़ा सीरियस मामला है। तुमने क्यों ये नहीं कहा कि ये एक तोहमत है, एक मॉन्स्टर स्लैंडर है? तो अल्लाह ताला तुमको हुक्म देते हैं कि तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि अगर ये लोग सच बोल रहे होते तब इन्होंने विटनेस सामने लाई होती जो टेस्टिफाई करते कि ऐसा कुछ हुआ। ये जो विटनेसेस की एब्सेंस है खुद में एविडेंस है कि इन्होंने झूठ बोला था। और जो ये हज़रत आयशा को इनका जो ये एग्जोनरेशन हुआ थ्रू वही, इसने और भी स्ट्रेंथन किया इनको कि 4 विटनेसेस चाहिए इनके खिलाफ। इट्स काइंड ऑफ 1 person against 4, तो 4 of you would be equal to 1. If you want to overturn her testimony, bring 4 among you. इससे बेहतर आउटकम नहीं हो सकता था कुछ हज़रत आयशा के लिए, कि खुद रब किसी के ऑनर को विंडिकेट कर रहे हैं। और जिन्होंने ये तोहमतें फैलाई थी, दे वर फ्लॉग्ड। लेकिन वक्त के साथ ये जो ये मामला है, ये इतना अच्छा नहीं रहेगा अदर वुमेन के लिए। व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा खूबसूरत लेसन है हमारे लिए। हम लोग कानून पे, लॉ पे, फिक पे बड़ी इजीली कमेंट करते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि आम इंसान कानून की निटी ग्रिटीज को नहीं समझता है। मैं आपको दो थॉट एक्सपेरिमेंट्स काइंड ऑफ अ थिंग, या 2 ऐसी सिचुएशंस बताऊंगा जो बड़े ट्रिकी हैं। इनमें जो ट्रिकरी है वो मैनिफेस्ट है, लेकिन इससे जो लेसन आपने सीखना है वो ये है कि कानून इतना सिंपल नहीं है जितना हमें लगता है। जैसे रेप की सज़ा क्या होनी चाहिए? हम सब लगभग मुत्तफिक हैं कि सज़ाए मौत होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया जब चीज़ के बारे में सोचे ना क्विकली। बट जब इसको हम प्योरली लीगल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, a life for an act is a different thing and taking someone's life is a different thing. ये पहला मसला इसमें आता है। दूसरा इससे भी फंडामेंटल है, वो ये कि द फर्स्ट एंड इन मोस्ट केसेस द ओनली विटनेस ऑफ ए रेप इज द पर्सन हु हैज बीन रेप्ड। जिनके साथ ये हादसा पेश आया वो इसके सबसे पहले विटनेस होते हैं, और मोस्ट केसेस में द ओनली विटनेस। अगर रेप की सज़ा मौत है तो रेपिस्ट के लिए बेहतर है कि वो इस शख्स को कत्ल भी करे, क्योंकि इफ द पर्सन इज केप्ट अलाइव देन देयर इज फॉर श्योर कम से कम मुकदमा तो चलेगा, यू माइट बी प्रोन गिल्टी, और सजाए मौत। पहली ही विटनेस नहीं रहेगी तो चांसेस इजी हैं आपके लिए बचने के। सेकंड, अगर इफ द पनिशमेंट फॉर रेप इज सजाए मौत and the punishment for murder is also सजाए मौत, then there is more incentive to kill the person। कि वैसे भी सजाए मौत मिलनी है, ऐसे भी सजाए मौत मिलनी है, कम से कम इसमें विटनेस तो खत्म हो जाएगा। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि व्हाट शुड बी डन विद इट। तो लॉ इतना इजी नहीं होता। अब मैं आपको कह रहा था कि 2 प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा। दूसरा प्रॉब्लम होता है जब भी किसी गुनाह की सज़ा स्ट्रिक्ट होती है, कन्विक्शंस कम हो जाती हैं। जैसे चोरी करने के लिए अगर हम हाथ काटने की सज़ा दें
आपको लगता है चोरियां कम होंगी, जो हो भी सकती हैं, ऐसा आर्ग्यू किया जाता है, डिटरेंस थ्योरी कहते हैं इसको, उसके हिसाब से लोग चोरी करेंगे नहीं। लेकिन हकीकत में ये भी होता है कि चोरियां लोग करे या ना करे, रिपोर्ट कम होंगी और फिर सज़ा कम मिलेगी। कहने का मतलब, इस शख्स ने मेरे वॉलेट से 10 रुपए लिए हैं, मैं इसको कोर्ट ले जाता हूँ। कोर्ट में जो जज बैठा है ना, वो इंसान है फाइनली। जो वकील साहिबान है वो भी इंसान है। मैं कितना भी चाहूँ, लेकिन जज साहब को भी पता है कि 10 रुपए के लिए किसी के हाथ काटना, वो क्या करेगा, वो इसको चोरी के जुमरे में कंसिडर ही नहीं करेगा, बोलेगा ये चोरी ही नहीं है, इसको कुछ और नाम दो, तो कन्विक्शन ही खत्म हो गई। रिपोर्ट ऑफ थेफ्ट वुड गो डाउन इन द सोसाइटी एंड यू वुड फील कि रॉबरीज नहीं हो रही है। इसकी भी अच्छी मिसाल फिर से यही है, व्हाट शुड बी कंसिडर्ड ए रेप। नाउ थिंक ऑफ दिस सिचुएशन, देयर इज अ person who who promises marriage to a woman कि हम शादी करेंगे, और इससे पहले उनके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी हुई और कुछ टाइम के बाद शादी नहीं हुई। द वुमन एलिजेस रेप, इसमें सजाए मौत दे। अगर स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस ऑफ रेप में जाएं तब यस, बिकॉज दिस इज नॉट कंसेंशुअल नाउ, बिकॉज जिस चीज़ की वजह से ये कंसेंसस था वो तो ख़त्म हो गया, तो कंसेंट तो है ही नहीं, तो इट्स रेप। और उसके बाद जब ये जज के पास ये केस जाएगा, वो देखेगा कि भाई ये उस वक्त एक काइंड ऑफ कंसेंट था, धोखाधड़ी है ये, ही इज रनिंग अवे फ्रॉम मैरिज, धोखाधड़ी तो है ये, मगर ये सजा मौत वाली धोखाधड़ी नहीं है। ऐसे ही टेक टू जुवेनाइल्स हु इंडल्ज इन सच एन एक्टिविटी, 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, नाउ मे बी द मेल इज 1 महीना 2 महीना एडल्ट, crosses 18, the girl is still 17 and 10 months. Now this is all of a sudden rape. तो ये भी कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट बोलेगा कि नहीं, तो यू वुड सी कन्विक्शंस फॉलिंग अंडर दिस, कहेंगे इतनी स्ट्रिंजेंट सज़ा नहीं दी जा सकती ऐसे एक्ट के लिए। लॉ इज नॉट एज सिंपल एज पीपल थिंक, इट्स नॉट वेरी सिंपल, मामला बड़े ट्रिकी हो जाते हैं। अब ये बात छिड़ी कहाँ से, उस पे आते हैं। यहाँ पे हमको ये कितना बड़ा खूबसूरत लग रहा है कि 4 विटनेसेस लाने हैं, तब आप किसी वुमन को अक्यूज कर सकते हो ऑफ अडल्ट्री एटसेट्रा। बट थिंक अबाउट इट, देयर इज अ वुमन हु accuses someone of rape and she moves court, कैसे हुआ मेरे साथ। अगर वो कोर्ट में साबित ना कर पाए, तो कोर्ट में साबित क्या हुआ, कोर्ट में बस इतना साबित हुआ इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, क्योंकि आपने खुद तस्लीम किया। दैट मीन्स जना हुआ है, जबर साबित नहीं हुआ, और जना की सज़ा आपको मिलेगी, जबर की सज़ा उसको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जबर तो साबित ही नहीं हुआ, उसके लिए 4 विटनेसेस चाहिए, और ऐसा हुआ। अब ये इसको कहते हैं ग्रे एरियाज ऑफ लॉ, लॉ का मिसयूज, लॉ के अंदर से ऐसी रिपरकशंस निकलना which are kind of difficult to deal। एक another example, and this I think is a real example from Pakistan, जहाँ पे a woman, उनके साथ ऐसा हुआ मामला, और फिर there was CCTV footage of it। Is CCTV footage equal to 4 witnesses legally? That is a question of law। तो टेक अनदर एग्जाम्पल, मैरिज। मैरिज के लिए विटनेसेस चाहिए होती हैं, 4 विटनेसेस
दो मर्द की तरफ से होते हैं, दो औरतों की तरफ से होते हैं, और वो देखते हैं कि महर अदा हुआ, कबूल है बोला, ज़बरदस्ती नहीं हो रही, जो भी मामलात होते हैं मैरिज के, एंड फाइनली निकाह हो जाता है। डिवोर्स का भी लगभग ऐसा ही है। बड़ा सिंपल है ये, लेकिन इसको भी मिसयूज़ किया जा सकता है। जैसे आप, एक एक लड़की है कहीं लाहौर से है, एक लड़का है दिल्ली से है, दोनों का एडमिशन हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को देखा, नजरें टकराई, दिल धड़के, चाहत के अफसाने बन गए दोनों, लेकिन बड़े इस्लामी फैमिली से हैं। तो अ, एक दूसरे से मिलते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो लेकिन लड़का कहता है अब्बा नहीं मानेंगे, एंड लड़की ऑल्सो सेज अब्बा नहीं मानेंगे। तो अब क्या करें? दिल भी तो कोई चीज़ है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सो दे से कि 3 साल यहाँ गुजारने हैं, 3 साल की शादी कर लेते हैं, या 3 महीने गुजारने हैं, निकाह कर लेते हैं, 3 महीने बाद डिवोर्स कर लेंगे, तुम चले जाना लाहौर, मैं दिल्ली चले जाऊंगा। अभी 3 महीने क्यों, इसको 2 महीने कर लो। इसको 2 महीने क्यों, इसको 1 घंटा कर लो। ओपन ए ब्रॉथरल, ए पर्सन एंटर्स इट, देयर इज अ वुमन, दोनों सामने, और जो वहाँ के बाकी लोग हैं वो विटनेसेस हैं, महर होगी उसकी फीस, ही पेज हर महर, शी सेज कबूल है, ही सेज कबूल है, आधा घंटा 1 घंटा दे स्पेंड टुगेदर, एंड आफ्टर दैट ही डिवोर्सेस हर एंड लीव्स। व्हाट पार्ट ऑफ इट इज इलीगल? शादी भी हुई, विटनेसेस भी हैं, महर भी आधा हुआ, डिवोर्स भी हो गया प्रॉपर। मेनी मोर एग्जाम्पल्स कैन बी गिवन। आपने हलाला सुना होगा, हलाला, वो भी ऐसा ही मिसयूज है कानून का, कानून के अंदर से ही निकलता है उसको मिसयूज करने का तरीका। जैसे ये मैंने निकाह की मिसाल दी, इसको आप निकाह बोलेंगे, ये जो भी हुआ आधे घंटे के लिए, मगर अगर आप कोर्ट जाएंगे वो बोलेंगे विटनेसेस हैं, वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। तो ऐसे मामलात हो सकते हैं। तो दीज आर ग्रे एरियाज ऑफ लॉ, जो आप बड़े इजीली लॉज पे क्वेश्चंस लगाते हैं, उन पे कमेंट्री करते हैं, डू दैट, मतलब व्हाट एम आई डिस्करेजिंग इज recklessness, not being able to think about the gravity that might be involved in the things। बाकी कमेंट्री करने में असल में हर्ज नहीं है, हर्ज है इंसान चीज़ को समझा नहीं और कमेंट्री कर रहा है, उसकी वजह से ही डज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द एडिफिस। तो लेज़ली हेजल्टन भी शी इज़ हिंटिंग टुवर्ड्स इट कि वक्त के साथ ये जो वर्सेस थी जो औरत की दिफा में उठी थी, इसका ऑपोजिट इफेक्ट हुआ। Conflating adultery with rape, they would argue that any such charge could be valid only if the woman could do the virtually impossible and produce 4 witnesses। तो जो चीज थी वो ऑपोजिट हो जाती फिर कानून में। खैर, इवन आयशा वुड नॉट एंजॉय हर ट्राइम्फ फॉर लॉन्ग, ज्यादा टाइम ये खुशी नहीं रही। अभी तक विद द एक्सेप्शन ऑफ हजरत खदीजा, शी हैड सो फार मैनेज्ड टू कीप हर जेलेसी ऑफ द अदर वाइव्स इन चेक। हजरत उमर की जो बेटी थी हजरत हफ्सा, वो ज़्यादा अपने अक्ल के लिए मानी जाती थी देन हर लुक्स। हजरत सऊदा और उम सलमा, द वुमन हु हैड इमिग्रेटेड टू मदीना अलोन विद हर इन्फेंट सन एंड हु हैड बिकम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's fourth wife, they were in middle aged matrons, that means old married women they were। बट नाउ, मतलब इनसे कोई कंपटीशन नहीं है हजरत आयशा को, दे शी इज क्वाइट कंफर्टेबल। लेकिन द प्रॉफिट नाउ टेक्स फिफ्थ वाइफ, हजरत जुवारिया। शी वॉज वन ऑफ द captives from the battle with the Mustalik। हजरत आयशा कहती हैं, बाय गॉड आई हैड हार्डली लेड आईज ऑन हर बिफोर आई डिटेस्टेड हर। मैंने अभी देखा भी नहीं था और मुझे पसंद नहीं आई। एंड देन शी सेज, आई न्यू
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड सी हर एज आई डिड। लेकिन पॉलिटिक्स इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी हज़रत आयशा, ऐसे लेज़ली हेज़ल्टन कहती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवारिया से इसलिए शादी नहीं की थी क्योंकि वो खूबसूरत थी, लेकिन इसलिए की थी क्योंकि जिस ट्राइब से वो थी, ये एक अलायंस का जेस्चर था, एक डिक्लेरेशन की दुश्मनी ख़त्म हुई। वो पास्ट में थी, अब हम रिश्तेदार हैं, अब हम एक ही हैं। आयशा माइट थिंक इन टर्म्स ऑफ पैशन, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कंसिडरेशन थी वो डिप्लोमेटिक थी। और ये भी सिर्फ तब तक रहा जब तक ही गॉट मैरिड अगैन। इसमें कहते हैं लेज़ली हेज़ल्टन, इसमें कम डाउट है कि दिस वन वाज आउट ऑफ डिज़ायर। अच्छा, ये क्या है, पहले ये वाक़ा सुन ले। लेज़ली हेज़ल्टन क्या कह रही हैं, कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है ये वाली स्टोरी भी कंकॉक्टेड है, ये भी बाद में बनी है। ये बाद में इसलिए बनाई गई बिकॉज द प्रॉफिट डिड नॉट हैव चिल्ड्रन, सो दे काइंड ऑफ, इन्होंने आउट ऑफ ना नोवेयर दे कंकॉक्टेड स्टोरीज टू शो कि नो ही वाज स्टिल मैनली। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अडॉप्टेड सन हज़रत ज़ैद उनके घर गए, और वहाँ पे हज़रत ज़ैनब थी, जिनको ऐसा लगा कि ज़ैद अंदर आए हैं, तो शी वाज काइंड ऑफ नॉट ड्रेस्ड प्रॉपरली। और उस कंडीशन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा और अपनी नज़रें झुकाकर बोला, प्रेज बी टू गॉड हु अफेक्ट्स मेंस हार्ट्स। इस बात को हज़रत ज़ैद सुनते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल आया है हज़रत ज़ैनब पे, तो वो उनको डिवोर्स करते हैं सो दैट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड मैरी हर। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं देखते, ये इंसिडेंट हमारे लिए ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि ये जो आपकी मुंह बोली औलादें हैं, ये औलादें नहीं हैं, दीज आर नॉट योर चिल्ड्रन। एंड द प्रॉफिट उनको हुक्म देते हैं रब कि यू मस्ट मैरी ज़ैद्स एक्स वाइफ, ही हैज़ ऑलरेडी डिवोर्स्ड हर। और उनका डिवोर्स क्यों हुआ, बिकॉज दैट मैरिज वाज नॉट कंपैटिबल, वो एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं थे, इस वजह से डिवोर्स हुआ। और अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनसे शादी करो। कुरान में है कि आपने ये मेरा जो हुक्म है ये दिल में छुपा के रखा। यू शुड हैव कंसिडर्ड मी नॉट व्हाट पीपल वुड से, कि लोग कहेंगे कि आपने अपने बेटे की वाइफ के साथ शादी की, लेकिन आपको कंसिडर ही नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं कुरान में, यू शुड हैव ओनली कंसिडर व्हाट आई सेड। And then the Prophet also calls it one of the most difficult things that he had to do. So why did he marry? And Quran records that itself, that he married so that this thing finishes forever. This discussion की ये जो मुंह बोली औलाद है, ये असल में औलाद है, ये असल में औलाद नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने इसके बारे में बड़ा सोचा है कि ऐसा क्यों होगा कि ये मुंह बोली औलाद आपकी खुद की औलाद नहीं है। एंड इट ब्रिंग्स मी बैक टू दैट सेम थिंग, लीनिएज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इस्लाम। नेवर माइंड ये मॉडर्न कम्युनिस्ट दुनिया आपको कितना बोलेगी कि ये सारी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं, कि लीनिएज कोई चीज़ नहीं होती है। प्रोटेक्शन ऑफ लीनिएज हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज वन ऑफ मकासद शरिया, और यहाँ पे उसका एक और एविडेंस दिखता है कि लीनिएज चेंज नहीं हो सकती। द चाइल्ड इज़ ऑफ दोज फ्रॉम होम ही इज़ बॉर्न। फिर उसको अडॉप्ट कोई भी कर ले, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आपके घर में पल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसको आप अपना नाम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। अब देखिए लेज़ली हेज़ल्टन ने यहाँ पे एक और मामला किया है। ये कहते हैं कि ये जो हज़रत आयशा थी, वो इस मौके पे भी शी यूज़ेस हर, वो ना वो स्पीच जो उनकी है, टार्ट टंग जो है वो, कि आपके खुदा हमेशा आपको खुश रखने में होते हैं, आपकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में लगे होते हैं। ट्रूली गॉड मेक्स हेस्ट टू डू योर बिडिंग। ये एक और मौका है वो दिखाने का कि यू शुड ऑलवेज रीड दीज टेक्स्ट्स विद समवन हु नोज दिस
दिस स्टफ, क्योंकि हम हज़रत आयशा के ये वाले स्पीच को यहाँ पे प्लेस ही नहीं करते। कितना डिफरेंट रंग लगा, क्योंकि लेज़ली हेजल्टन क्या साबित करना चाह रही हैं कि देयर वाज डिज़ायर। और इस कोट से फिर लगता भी है, क्योंकि हज़रत आयशा ने तो सीधे बोला कि आपकी डिज़ायर थी और अल्लाह ताला ने यहाँ से हुक्म दे दिया कि कर लो शादी इनसे, तो गॉड इज़ डूइंग व्हाट यू विश टू डिज़ायर। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। ये जो एक कॉल है हज़रत आयशा का, इस कॉल को हम एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने कहा है, लेकिन किस कंटेक्स्ट में कहा है और कब कहा, वो ये था। मैं उस स्टोरी में तो डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि वो क्या मामला थे जो हो रहे थे मदीनन सोसाइटी में। बस उसका कंक्लूजन ये था कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी थी कि वो बिना महर के शादी कर सकते हैं। ही नीड नॉट गिव महर। एंड सेकंड, ही नीड नॉट गिव एवरी वाइफ इक्वल टाइम, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में, जब आप एक से ज़्यादा वाइफ को लेंगे यू कांट बी पार्शल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या इजाज़त दी कि अगर आप चाहते हैं आप एक ही के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दूसरे के साथ कम, ऐसे ही वट एवर यू फील यू कैन डू दैट। एंड इस पे हज़रत आयशा कहती हैं कि ये यू गॉड काइंड ऑफ फुलफिल्स व्हाट यू डिज़ायर। लेकिन फिर हमको दूसरे साइड से पता चलता है द प्रॉफिट डिड नॉट डू एनी ऑफ द टू थिंग्स। दैट टेल्स अस इट वाज नॉट इवन हिज डिज़ायर। ये अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त थी, और वो क्यों थी, वो दैट्स अ टॉपिक फॉर अदर डे। मतलब वो भी डिस्कस किया जा सकता था कि मुशरिकीन क्या कर रहे थे फैमिली को डिस्टर्ब करने के लिए, और अल्लाह ताला का ये हुक्म क्यों आया कि आप कर सकते हैं विदाउट डॉवर एंड विदाउट ये। उनके घर में ना फिर से फूड डालने की कोशिश कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने यहाँ से हुक्म दिया कि आप कर सकते हो ये। तो बट द प्रॉफिट डिड नॉट डू इट, neither did he marry without dower, nor did he give more time or less time to anyone. He was fair till the last moment, sallallahu alaihi wasallam. So all too aware of the tensions between his wives, the prophet rotated his nights in strict sequence between them. ये लेज़ली हेजल्टन भी कहते हैं, जबकि उन्होंने ये कंटेक्स्ट दिया नहीं कि वो हज़रत आयशा का जो कॉल था, उन्होंने उसको अपने कंटेक्स्ट से हटाकर इस कंटेक्स्ट में डाल दिया, विच इज़ नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग टू डू। अब आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन ए वेरी डिफरेंट कंटेक्स्ट। पहले मैं इसको वैसे पढ़ता हूँ जैसे लेज़ली हेजल्टन ने कहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें कितनी खूबसूरत बात हमको पता चलती है। शी सेज कि इनका कोई अलग से अपना कमरा नहीं था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आज एक वाइफ के साथ, कल दूसरी वाइफ के साथ, ऐसे ही। और ये रूम्स को भी ऐसा ना समझे आप कि कोई मैंशंस हैं, कुछ रूम्स हैं। ये ईस्टर्न वॉल जो है मस्जिद नबवी की, वहीं पे बगल बगल में कुछ दीवारें हैं और सामने एक पर्दा लगा हुआ है, दैट्स ऑल। अंदर एक स्टोन बेंच सा है जिस पे शाम में बिस्तर बिछता है, दैट्स ऑल। और सुबह वही राउंड करके साइड में रखा जाता है। और द मोमेंट यू वुड कम आउट ऑफ द रूम यू आर इन द मस्जिद। कोई रास्ता नहीं है फिर बीच में, आप डायरेक्टली मस्जिद में है। So the believers would see, if the prophet would enter into any room, they would be able to see it. And the believers would keep close watch कि कहाँ पे वो गए, कहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, किसकी हनी ड्रिंक ही सीम्ड टू लाइक, किन के यहाँ निकलने के बाद कैसा मूड रहता था उनका। तो लेज़ली हेजल्टन कहती है इससे ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट लाइफ नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट लाइफ नहीं हो सकती। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे यहाँ जितने भी बड़ी हस्तियाँ होती हैं, चाहे वो बड़े सियासत में लोग हों, बड़े दौलतमंद हो, बड़े टीचर हो, बड़े साइंटिस्ट हो, बड़े जर्नलिस्ट हो, इन्फ्लुएंसर हो, जो भी मामलात सबके छुपे हुए रहते हैं दुनिया से, जिसकी वजह से उनकी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप मुझे को देखें, मेरा रवैया बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा, बड़ा उम्दा,
लेकिन मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या हूँ, यू वुड हार्डली नो. इनफैक्ट यू डोंट नो एट ऑल. यू डोंट हैव एक्सेस टू माई प्राइवेट लाइफ एट ऑल. मैं कुछ भी हो सकता हूँ अपनी प्राइवेट लाइफ में. आई कैन बी एनीथिंग. एंड दैट लीव्स रूम फॉर करप्शन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ करप्शन रिमेन्स. अभी तो कह नहीं सकते ना एम आई करप्ट और नॉट. यू डोंट नो. इस वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन कि मैं अपनी ये वाली लाइफ को अच्छे से चला सकता हूँ बाय बीइंग करप्ट इन सम अदर लाइफ. नाउ कंट्रास्ट दिस. ये जो मॉडर्न दुनिया का लीडरशिप है, मॉडर्न दुनिया का जो लीडर होता है, कंट्रास्ट दिस विद द प्रोफेटिक लाइफ. हिज मोस्ट इंटीमेट लाइफ इज एडजेसेंट टू मॉस्क. दिस इज द मोस्ट पब्लिक प्राइवेट लाइफ. If he would shout on his wives, Maazallah, nauzubillah, even that would be known. उनकी कथनी और करनी में अगर थोड़ा सा भी फर्क होगा ना, मेरे में आपको कभी पता ही नहीं चलेगा. सियासत में जो इतने लोग हैं, आपको कुछ नहीं पता चलेगा. जितने अमीर लोग हैं, कुछ नहीं आपको पता वो क्या हैं घर पे अकेले में. यू डोंट नो. बट हियर इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. हिज कैरेक्टर इज इन फ्रंट ऑफ पीपल 24/7 हर मामले में. एंड देन दे ब्रिंग ईमान. तब जाके इस शख्स पे उन्होंने इस हद का ईमान लाया. बिकॉज देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग टू डाउट इन दिस पर्सन. दैट एक्सप्लेन्स वो जो ईमान की कुव्वत थी उनकी, यकीन क्यों था इस लेवल पे. बिकॉज देयर इज नथिंग टू हाइड. जो है सामने है, सबको पता है, सब देखते हैं. वो शाहिद हैं. तभी वो कहते थे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह. वो शाहिद थे उनके नबूवत के, उनके रिसालत के. तभी वो कहते थे अशहदु अन्ना. और हम उनकी परपेचुअल शहादत को तस्लीम करते हैं. और हम भी कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कि उन्होंने देखा, उन्होंने देखा, उन्होंने देखा. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ एक पब्लिक लाइफ है. इट्स नॉट हिडन जिस पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है. वन फार मोर कंड्यूसिव टू स्ट्रेस देन टू लाइसेंसियसनेस. कि लाइफ कैसी थी, इतनी पब्लिक थी प्राइवेट लाइफ, जो ज़्यादा आपको स्ट्रेस देती दैन केयर फ्री प्लेजर. जो कि विक्टोरियन एरा यूरोपियन स्कॉलर्स, उनका कहना है कि ये क्या ज़िंदगी, मज़े है, वो है, ये है. नाउज़ुबिल्लाह, दे वुड यूज़ द वर्ड्स फॉर द प्रॉफिट विच वी कैन नॉट यूज़. जो जिस एरा के लिटरेचर की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जब यूरोपियंस दे हैड राइट अबाउट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे यूज्ड वेरी वाइल्ड लैंग्वेज. तो शी सेज इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल कि उनकी ज़िंदगी जो ये दिखाती है, ये पब्लिक प्राइवेट लाइफ, इट वुड हैव बीन काइंड ऑफ लाइसेंशियस. दैट मीन्स केयर फ्री प्लेजर वाली लाइफ है ये वो है ही नहीं, इसमें वो हो ही नहीं सकता. इट इज़ मच मोर प्रोन टू स्ट्रेस दैन टू दैट. और कुरान की एक और आयत है, लेज़ी हेज़ल्टन कहते हैं, जो रिफ्लेक्ट करती है इस स्ट्रेस को जो इन मैरिजेस की वजह से हुआ. It began by granting Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam special dispensation as the leader of Ummah, that he could marry as many times as he wished. But this privilege was his alone. In principle, it went on to say कि जितने भी बाकी मुसलमान हैं, जितने भी मोमिन हैं, वो सिर्फ अप टू 4 मैरिजेस कर सकते हैं. और ये भी सिर्फ इन प्रिंसिपल है. कुरान ने पॉलीगैमी को कभी एनकरेज किया ही नहीं. ये भी इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि कोई हदीस, कोई कुरानिक आयत मुसलमान मर्दों को पता हो ना हो, वुज़ू का तरीका ढंग से नहीं पता, नमाज का तरीका ढंग से नहीं पता, सच कह रहा हूँ मैं, पूछ लो किसी से, आप नहीं पता होगा, लेकिन ये पता है कि 4 शादियाँ कर सकता हूँ मैं. एज इफ यही पहला फ़र्ज़ है. अगर आपको साबित करना है मैं मुसलमान हूँ, तो कहाँ है तुम्हारी 4 बीवियाँ, ये पहले साबित करना है. जबकि है इसका ऑपोजिट.
ये 4 बीवियां एक्सेप्शन है, 3 बीवियां एक्सेप्शन है, 2 बीवियां एक्सेप्शन है, 1 बीवी रूल है। द रूल इज ऑलवेज वन वाइफ। इसीलिए आप देखेंगे आपके आसपास भी देयर इज ऑलवेज वन वाइफ। लेकिन जंग उहुद के बाद जो इतनी विडोज थी, इनके साथ कैसे डील करे, तो अप टू 4 वाइफ्स की इजाज़त दी गई। और इनफैक्ट अल्लाह ताला ने इसको एनकरेज किया। जब खुदा किसी चीज़ को एनकरेज करेंगे तो सहाबा क्या करेंगे? They would indulge in it. They would want to do it as much as possible. So they did it. लेकिन अल्लाह ताला ने उस पे जो कंडीशन बयान की है ना, उसको समझो। अल्लाह ताला ने कहा है कि इफ़ यू कैन नॉट डू जस्टिस बिटवीन देम देन मैरी ओनली वन। तो लोगों को लगता है कि वो जस्टिस कर पाएंगे। जिनको ये लगता है ना कि मैं 2 शादियाँ करूँगा, 3 शादियाँ करूँगा, 4 शादियाँ करूँगा, उनको ये गलत फहमी है कि वो जस्टिस कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप कर पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगा कि नहीं, कोई कर पाता है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि इसी सूरा में लगभग 100 आयतें बाद शायद 129th वर्स है इस चैप्टर की, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं यू वुड नॉट बी एबल टू डू जस्टिस बिटवीन देम। अल्लाह ताला खुद से कहते हैं यू वुड नेवर बी एबल टू डील जस्टली विद देम। तुम्हारा दिल इंक्लाइन हो जाएगा एक तरफ। तो इन ए वे देयर इज एन एडमोलिशन फॉर इट पहले से ही कि ये जस्टिस कर पाना मुश्किल चीज़ है। दैट काइंड ऑफ टेल्स अस कि व्हाट इज द रूल। द रूल इज वन मैरिज। लेज़ली हेजल्टन ने इसी आयत को इन वर्ड्स में कोट किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टू इंस्ट्रक्ट हिज फॉलोअर्स, but we understand this is kalamullah that is being called. That prophet was to instruct them because God has asked him to do it. That's what is being meant. Kya? You will never be able to deal equitably between many wives, no matter how hard you try. So if you fear you cannot treat them equally, marry only one. This is actually what the lesson is from Quran. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद वो ओनली वन वुड ऑलवेज बी हज़रत खदीजा। 8 साल हो गए थे उनको गए हुए, और लीडरशिप की डिमांड्स भी इंक्रीज हो गई थी। दिस इज़ द टाइम ही वुड हैव यर्न्ड मोर दैट मोनोगमी विच ही हैड विद हज़रत खदीजा। लेकिन अब इनकी खुद की मैरिटल सिचुएशन भी इक्वली इंट्रिकेट हो रही थी जितनी डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल अफेयर्स इंट्रिकेट हो रहे थे। जैसे मक्का में जो मामला थे दे वर थ्रेटनिंग हिम, यहाँ पे भी इंस्टेड ऑफ बीइंग सोर्स ऑफ warmth and support, there was increasing stress, leading to what was destined to become one of the most controversial decisions of his life. Now, what was that controversial decision? What led to it? We would look at in the next session, inshallah.